डिसऑर्डर के बारे में भी पढ़ा तो होगा, आई गेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, राइट? पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में था अभी ये पिछले सेमेस्टर में, ये और थेरेपीज में नहीं था कुछ, बस साइकोडायनेमिक का जो थियरी है पर्सनालिटी का उतना पढ़ा है। बाय सिगमंड फ्राइड, राइट? यस। ओके, सो हम हल्का सा ना अल्फ्रेड एडलर और कार्ल यूंग का भी हल्का सा पॉइंट देखेंगे। सो बिफोर स्टार्ट, आरती यहाँ पे आ गई है। आरती, कैन यू प्लीज स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन बिफोर टेकिंग द क्लास? हम जस्ट क्लास स्टार्ट ही करने वाले हैं। कैन यू गिव मी योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन सो दैट हम अच्छा एंगेजमेंट रहेगा हमारा। आरती, एम आई ऑडिबल? हाय आरती। Hello, Yes, am I you are audible? audible. Please Yeah, there is yes, some connectivity continue. issue. Please excuse. Okay. Yeah, my name is Arati and I've completed my master's from Coimbatore from BSc Arts and Science. Can you please, your voice is a little bit low. Can you put your mic closer so that we can hear you clearly? Yeah. Is it okay Yeah, now? it's better than before. Yeah. Please continue. Okay, so my name is Arati and I have completed my master's recently from BSc Arts and Science, Coimbatore. And Completed currently your I'm master's doing my with BSc, preparation right? in FIT. Yeah, MSc. MSc. Okay. Yeah, From Computer, right? yeah, Coimbatore. Okay. Continue. Go ahead. It's your first time here, right? Hello, hello, Yes. It's your hello. first time here, right? Yes, Arti. Yeah, yeah. So So, I'm preparing for MPhil actually. so you're gonna be a clinical psychologist, right? Yeah. Hmm. A lot of psychologists here. Glad to be here. Me too. So yeah, let's begin the topic, and that is personality disorder. हाँ. और अभिषेक, do you have PDF, right? हमने भेजा था. Please open it. Are you comfortable in English और हिंदी, आर्ची और समृद्धि? ये हम दोनों रख सॉरी। लें. Are you comfortable in English और हिंदी? सर, एनी इज फाइन। We can continue in both, right? या Archie, I guess Yes, from yes, computer it will be okay in yes. English only. Okay, it's okay. I know little bit Tamil, as just Nandri, Valakam, and Adaga, just these words. I was in Tamil Nadu actually. So yeah, let's continue. कहाँ पे है? शेयर स्क्रीन करेंगे अभी हम. अभिषेक, या तो मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है एक्चुअली ग्रुप में. वेट अ मिनट, आई एम जस्ट सेंडिंग द पीडीएफ इन द ग्रुप so that all can read. Okay, wait a minute, just a second. Yeah, here it is. Archie and you are in main group, right? Understanding human behavior and society. I just sent it the PDF. You can open it and you can go through with that, huh? Okay. Okay, so here it is. Personality disorder. So personality disorder is an enduring pattern of inner experiences and behavior that deviates markedly from the norms and expectation of the individual cultures. तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये होता है, एक पैटर्न होता है इनर एक्सपीरियंस का, बिहेवियर का, जो हमारा नॉर्म्स होता है ना, सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं. देयर इज अ नॉर्म्स दैट इज सेट बाय द सोसाइटी. सो व्हेन यू डेविएट फ्रॉम द नॉर्म, you will be it will be considered as personality disorder, or it can be deviate from the individual cultures also. किसी का कल्चर है, उसमें कुछ मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, नॉर्म्स है, सेट किया गया है, ऐसे ऐसे अगर आपको, तो आप सामान्य व्यक्ति हो. जब वो से विपरीत हो जाते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल. एबनॉर्मल की बात करें, लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है?
पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है ना, एबनॉर्मलिटी तो होती ही है, हम नॉर्म्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से, कल्चर से अलग होते ही हैं। ये एडल्टहुड में आने वाली समस्याएं हैं। जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये एडल्टहुड में आने वाली समस्या है, नॉट लाइक एडोलसेंस में आ गया, 5 साल की उम्र में आ गया, 5 ईयर्स 7 ईयर्स की एज में आ गया, नो। ये ऑनसेट ऑफ एडल्टहुड में हमें सिम्टम्स दिखते हैं। वी सी द सिम्टम्स ऑन द ऑनसेट ऑफ एडल्टहुड, so this is the main quality of personality disorder. And it is pervasive and inflexible, and the onset is adolescence or early adulthood. Adolescence जब खत्म होने वाला होता है और वही यहाँ पे अर्ली एडल्टहुड होता है, 17, 16, 15, 18, 19 ऐसे ही एज में ये दिखाई देता है। और ये टाइम के दौरान पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्टेबल होता है। और इससे क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ही समस्याएं होती हैं। अब क्या क्या है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और गहराई से समझने के लिए हमने ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तमाम तरह की चीजें आती हैं, तो इसको ना इतने सोचिए, तारे को सोचिए, करोड़ों अरबों तारे हैं आसमान में, तो उनको उनका अलग अलग ग्रुप बना के अलग अलग उनका नाम दिया गया है क्लस्टर्स में, राइट। तो ऐसे हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बहुत अलग अलग इसमें सिम्टम्स आते हैं। तो इसको ना एक क्लस्टर्स है ये पूरा, मतलब बहुत समझिए, हमारे जो सिम्टम्स हैं ये तारे हैं, और इनको एकत्रित करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए क्लस्टर्स बनाए गए हैं। तो 3 क्लस्टर्स बनाए गए हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। गॉट इट? आर यू गेटिंग में? हो रहा है से आरती, समृद्धि, कौशल? You can. Aarti, you Yeah. can just put your thumbs. Yeah. Yes. Yeah. Thank you. What about you, Kaushal? Are you getting us? Huh? Okay. So yeah. So let's talk about cluster A. Thank you very much. तो क्लस्टर ए की बात करते हैं, और क्लस्टर बी की बात करते हैं, क्लस्टर सी की बात करते हैं। किनों की बात करेंगे हम? क्लस्टर ए में सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसमें आता है पैरानॉइड, सिजोइड, सिजोटिपल पर्सनालिटी। और ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं ना, बहुत ही ऑड और बहुत ही इसेंट्रिक होते हैं, बहुत ही वियर्ड, बिल्कुल इसेंट्रिक, गुस्सैल, सनक अचानक से आ जाते हैं इनके अंदर, जो हिंदी भाषा में बोलते हैं इसेंट्रिक। सो इसमें पैरानॉइड, सिजोइड, सिजोटिपल, अब इनकी भी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। हम बहुत डिटेल में इस क्लास में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि वी हैव लिमिटेशंस। हाँ, सो या इसमें पैरानॉइड, सिजोइड और सिजोटिपल आते हैं क्लस्टर ए में। अब इनकी क्वालिटीज ओवरऑल इन जनरल बात करें तो ये बिल्कुल क्या होते हैं, ऑड एंड इसेंट्रिक होते हैं। गॉट इट? और अब हम क्लस्टर बी की बात करते हैं। क्लस्टर बी में अगर हम देखें, यहाँ पे आप लोग पीडीएफ ओपन कर सकते हो एंड यू विल सी कि इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, एंटी सोशल होंगे, बॉर्डर लाइन वाले होंगे, हिस्ट्रियोनिक होंगे, और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होंगे। हम आगे करके कुछ, सभी के तो नहीं बात कर सकते हम, बट कुछ कुछ ऐसे मेन जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर ए बी सी के हैं, हम उनका आगे बात करेंगे, आगे के पेजेस में है वो, ठीक है। आरती एंड समृद्धि एंड कौशल, अभिषेक, ओके। सो क्लस्टर बी में हमने देखा कि एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति होते हैं। अब एंटी सोशल क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन क्या होते हैं, ये सब तो हम पढ़ने वाले हैं आगे। अच्छा, ओवरऑल क्लस्टर बी वाले कैसे होते हैं, इन जनरल इनका परसेप्शन हम कैसे बना सकते हैं कि ये बहुत ड्रामेटिक होते हैं, और ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, इरेटिक होते हैं। इनका कोई भी मतलब इमोशन जो है ना, स्टेबल नहीं रहेगा। गॉट इट? और ये बहुत ही ड्रामेटिक होंगे और इरेटिक होंगे। अचानक से इनके अंदर ना गुस्सा कब आ जाए, कब गुस्सा चला जाए, तो ये क्लस्टर बी के अंदर ये होते हैं। अब क्लस्टर सी की बात करें तो ये एवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव, जो ओसीडी का जो सिम्टम्स होता है वैसा इनके अंदर चीजें सिम्टम्स पाई जाती है। गॉट इट? अब ये ओवरऑल इनका जनरल परसेप्शन की बात करें तो ये क्या होते हैं, बहुत ही एंग्शियस होते हैं, बहुत ही फियरफुल होते हैं। तो क्लस्टर सी में मतलब ये बहुत ही एंग्शियस और फियरफुल होते हैं। और क्लस्टर बी की बात करें तो ड्रामेटिक और हाय, वेलकम शिखा।
सो हम क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी की बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। तो क्लस्टर ए में हम जानते हैं कि बहुत ही ऑड और एसेंट्रिक होते हैं। क्लस्टर बी में बहुत ही ड्रामेटिक और इमोशनल होते हैं, इरेटिक होते हैं। क्लस्टर सी वाले एंग्सियस और फियरफुल, हमेशा इनको डर चिंता लगा रहेगा, चीजों को एंग्सियस रहेंगे क्लस्टर सी वाले। और क्लस्टर बी वाले बहुत ही ड्रामेटिक 200% अटेंशन सीकर, इसमें इसीलिए नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वालों को भी रखा गया है। इमोशनली जरा सी बात पे बिल्कुल गुस्सा मान जाएंगे, थोड़ी सी बात पे भी, और बिल्कुल ये इरेटिक हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, बहुत ही रिएक्टिव हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर क्लस्टर बी वाले। क्लस्टर सी का जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले कैसे रहते हैं, ये ऑड और इसेंट्रिक रहते हैं बिल्कुल। तो अभी कुछ ना हम कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें तो कुछ फेमस पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जैसे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये हम 4 पर्सनालिटी डिसऑर्डर की भी बात करते हैं। यू कैन गो थ्रू विद द पीडीएफ सिखा आरती, अगर आप नए नए ज्वाइन हुए तो आप पढ़ सकते हो उसको। अभिषेक आप पेज को टर्न कर देंगे प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड चाहिए हमें। थैंक यू वेरी मच। लेट मी सी। तो अगर किसी को दिख रहा है यू कैन रीड आरती, इफ अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो यू कैन। श्रेष्ठा, हाय श्रेष्ठा, वेलकम, हाउ यू? आज हेलो आप लेट हो गए थोड़ा। हाँ, वी आर स्टडिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अभी हमने क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी का हल्का सा हमने रिवीजन कर लिया था, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है ये हमने हल्का सा पढ़ा था। होप आप पिछले क्लासेस में भी तो थी, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगा। बट हाँ, अभी हम पे पैरानॉइड, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन और नार्सिसिस्टिक का मुख्यतः बात करने वाले हैं। गॉट इट? श्रेष्ठा, इफ यू आर ओके विद दैट तो यू कैन कंटिन्यू विद द रीडिंग पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। Please continue. Okay, so I have to read from paranoid personality disorder. From paranoid, yeah, from B, yes. Thank you. Yes. Paranoid personality disorder. The essential feature of paranoid personality disorder is a pattern of pervasive distrust and suspiciousness of others, such as their motives are interpreted as malevolent. This pattern begins by early adulthood and is present in a variety of contexts. Okay. So as we seen in paranoid personality disorder, इनका essential feature क्या होता है कि ये हमेशा डिस्ट्रस्ट में रहते हैं, हमेशा ही खुद बहुत चिंतित रहते हैं और हमेशा सख्त मिजाज होते हैं। सस्पिशियसनेस का मतलब होता है शक, संदेहवादी हिंदी में बोलते हैं। तो दे ऑलवेज डाउट, हाँ, दे नेवर ट्रस्ट, दे नेवर गोना ट्रस्ट यू वेरी इजीली। आसानी से आपको ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। दे रियली मतलब नीड की बहुत ही पापड़ बेलना पड़ेगा आपको, बोलते हैं ना, इनका ट्रस्ट गेन करने के लिए। तो विश्वास तो किसी पे भी नहीं करते ये, और हमेशा डिस्ट्रस्ट की भावना इनमें रहती है। और ये जो इनका जो सस्पिशियसनेस होता है, शक होता है दूसरे व्यक्ति के प्रति, क्राउड के प्रति, या अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने सिबलिंग्स के प्रति भी, तो ये जो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, शक तो कई लोग करते हैं, बट शक करने का क्या इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, हाउ दे इंटरप्रेट अबाउट द सस्पिशियसनेस, हाउ दे इंटरप्रेट सस्पिशियसनेस। अपना स्केप्टिक होना अलग है, सस्पिशियसनेस होना अलग है। बट एज अ मेलोवेंट, मेलवोलेंट का मतलब क्या होगा, बिल्कुल गलत विचार रखेंगे आपके बारे में, जो कि बहुत ही मतलब गलत विचार होगा, और वो हेटफुल होगा, हार्मफुल भी होगा, ऐसा विचार वो आपके प्रति रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है मेलवोलेंट में, इसकी इनकी क्वालिटी ये है। और एक पैटर्न जो होता है ना, एडल्टहुड से आता है। हमेशा आप याद रखना, जब भी आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो मोस्टली 99% जो सिम्टम्स आते हैं एडल्टहुड में आते हैं, या एडल्टहुड से हल्का सा पहले जो समय होता है, 16 साल, 17 साल या 17.5 साल, उस समय स्टार्ट होता है। ठीक है, पैरानॉइड वाले क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सस्पिशियसनेस वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज होते हैं। सस्पिशियसनेस का मतलब सख्त मिजाज। परवेसिव डिस्ट्रस्ट होता है इनमें, और मेलवोलेंट वाली फीलिंग होती है कि गलत सोचते हैं, कुछ हार्मफुल सोचते हैं आपके बारे में। इसको ये मर जाए तो कितना अच्छा होगा, मेरा जीवन कितना अच्छा हो जाए। इसको अभी आपने केस सुना था ना, ये कौन सा केस था ये वो जो लड़की थी ना, उसका अगर आप केस स्टडी देखो तो वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली थी।
ये जो शिलोंग में जाके ये इंदौर वाली क्या नाम था इसका, जो भी हनीमून पे जाके वो खाई से मार, आई डोंट नो, मतलब मैंने पूरा देखा नहीं है, बीकेएस आ रहा है उसका, तो बस मैंने वो थोड़ा उसका की स्टडी वगैरह देखा था, अक्सर आता है, तो उसमें ये पैरानॉइड ज्यादातर कैटेगरी में वो व्यक्ति आती है। तो मेलवोलेंट, सो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं अभी। आई होप पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको 2-3 पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। परवेसिव डिस्ट्रेस रहता है, सस्पिशियसनेस रहता है और मेलवोलेंट वाला होता है, और इनका जो सिम्टम्स आता है वो एडल्टहुड से ही आना शुरू होता है। गॉट इट? सीखा श्रेष्ठा? आरती, समृद्धि, कौशल, यू कैन जस्ट टिक। ऐसा हम सब कर सकते हैं सभी लोग। ओके ओके ओके, सभी ने करा। हु विल रीड? कौशल, यू कैन कंटिन्यू। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, if you are able to read। एंटी-सोशल से पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, यस, द इसेंशियल फीचर ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इनका क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द एसेंशियल आरती, फीचर ऑफ आरती, आर यू ओके विद द हिंदी ना? Yeah, it's fine. No, Okay, okay, fine. okay. Thank you very much. Tell me if you face any a 9-month pregnant woman was strangled to death. Wait a minute, just let me read. मैरिड Did because she was made bad curry. Oh my. We will discuss about. Yes, you can continue, Kaushal. Thank you. The essential feature of antisocial personality disorder is a pervasive pattern of discrete for and violation of the rights of others that brings that begins in childhood or early adolescence and continue into adulthood. This pattern has also been referred to as psychopathy, sociopathy, or dash social personality disorder because deceit and manipulation are central features of antisocial personality disorder. देखा आपने क्या क्या इसमें देखने को मिला हमें कि इनका इसेंशियल फीचर क्या होता है। इसेंशियल बिल्कुल मुख्य जो फीचर है इनका एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले का, हम बोल देते हैं आमतौर बिल्कुल कि आमतौर पर कि इसेंशियल फीचर एंटी सोशल है। बहुत ही एंटी सोशल मतलब काफी लोग इंट्रोवर्ट को ही समझ लेते हैं, बट नो, ये मिथ हटा लो आप लोग, ऐसा नहीं होता। एंटी सोशल वालों का क्या होता है, इनका जो परवेसिव लगातार जो पैटर्न होता है ना, दूसरों को गलत डिसरिगार्ड फॉर, दूसरे के प्रति हमेशा निगेटिव थिंकिंग रहेगी। दुनिया बहुत बदनाम है और अति बदनाम है, तो मैं कुछ भी करूंगा। दुनिया मेरे साथ अच्छा नहीं करा, विक्टिम कार्ड उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे साथ गलत नहीं करा तो मैं किसी का केयर नहीं करूंगा, कोई सोशल वेलफेयर का काम नहीं करूंगा, मैं बस कंजप्शन करूंगा किसी की तरह, ऐसा इन जनरल उनका थॉट होता है। डिसरिगार्ड होता है दूसरे के प्रति, अच्छा सोच ही नहीं सकते, ज्यादातर बुरा ही सोचते हैं दूसरे के बारे में, और वायोलेशन भी करते हैं उसके लिए। वो चाहे तो उसके लिए वायोलेशन भी कर सकते हैं, और वायोलेशन हिंसा करने में, अटैक करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। और क्या होता है, अगर इनको अपने सेल्फिश नीड्स के लिए दूसरे का राइट ना मिले तो ना मिले, दे डोंट केयर अबाउट योर राइट्स। आपको एजुकेशन नहीं मिला, आपको फूड नहीं मिल रहा, आपको शेल्टर नहीं मिल रहा, आप मर रहे हो, जाओ आप मरो, दे डोंट केयर एक्चुअली। एक्सट्रीम तक ऐसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, और ये चाइल्डहुड से शुरू हो जाता है। एक बहुत सारा वेब सीरीज था अभी देखने को मिलता ही है, मतलब चाइल्डहुड से शुरू होता है। अभी एक चुप करके एक मूवी था, वो उसका रीमेक था, गुरुदत्त का एक मूवी है 1960 में, कागज के फूल प्यासा, ऐसा कुछ उसका रीमेक बनाया था, तो उसमें मूवी में हमें देखने को मिलती है ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अजीब तरीके से उसका हत्या करे, बिल्कुल क्रॉस क्रॉस करके। तो ये चाइल्डहुड से चीजें शुरू होती हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और एडोलसेंस से कंटिन्यू होती है, एडल्टहुड तक चलती हैं। अच्छा, ये हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर मोस्टली जो पढ़ते हैं हमें देखने को मिलती है एडल्टहुड में, बट ये जो एंटी सोशल है ना, बचपन से शुरू होता है। हाँ, सभी बचपन से ही शुरू होता है, बट मेनली जो अकरेंस होता है, जो घटना घट रहा होता है, जो सिम्टम्स दिखा रहे होते हैं, एक्शन वो करते हैं, दे परफॉर्म द एक्शन मेनली इन एडल्टहुड, 18 के आसपास, 17-18 के आसपास, 19 के आसपास, 25 के आसपास, ऐसा हो सकता है। इट कैन डेविएट। हाँ, तो सभी को समझ में आ रहा है? You can just put your thumbs so that I can
मुझे लगे कि मैं व्यक्तियों से बात कर रहा हूँ, अकेले ऐसा हो रहा है क्या? इफ यू कंफर्टेबल आप वीडियो ऑन कर सकते हो ताकि आई कांटेक्ट बना रहे। इट्स ओके इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो दिस पैटर्न हैज आल्सो बीन रिफर्ड टू अस। अब देखो इसको और भी टर्म से बोले जाता है, साइकोपैथी, सोशियोपैथी, डाइसोशियल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से भी बोला जाता है। क्योंकि 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 डिसीट, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना इनका सेंट्रल फीचर होता है। ये गैसलाइटिंग में, मैनिपुलेशन में, डिसीट करने में, रेशनलाइजेशन करने में महारत हासिल होती है इनको, एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। ठीक है, तो अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए आपको किसी तरह भी आपको मैनिपुलेट कर देंगे, गैसलाइटिंग करेंगे और डिसीट करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत ज्यादा करते हैं। अब सॉरी, एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग। सो अब लेट्स टॉक अबाउट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अभी इनका ना पूरा का पूरा कॉज पता करेंगे तो बचपन का फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज ही होता है मोस्टली, और इनके मोस्टली के तो पेरेंट्स ही नहीं होते। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखते हैं। ये कौन रीड करेगा? श्रेष्ठा, यू कैन कंटिन्यू। Borderline personality disorder. The essential feature of borderline personality disorder is a pervasive pattern of instability of interpersonal relationships, self image and affects, and marked impulsivity that begins by early adulthood and is present in a variety of contexts. थैंक यू वेरी मच श्रेष्ठा। कौशल, आपको भी थैंक यू, आपने जो पढ़ा था। और आरती ने शायद पढ़ा था, थैंक यू उसके लिए भी। सॉरी इफ आई फॉरगेट। हाँ, तो अब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। अब इनका एसेंशियल फीचर क्या होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का? इनके रिलेशनशिप में ना इनस्टेबिलिटी रहती है। कोलकाता वाला केस याद करो आप, जो डॉक्टर का रेप करा था, जिसमें क्या नाम था उसका, आई डोंट नो। अब उसका वो एग्जांपल जो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का है। तो इनका ना बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है और बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका अफेयर होता है, रिलेशनशिप होता है। वो किसी एक के साथ रिलेशनशिप में ज्यादा देर तक रह ही नहीं सकते। ठीक है, ये इनके दोस्त जल्दी नहीं बनते, दोस्त रहते हैं, दोस्त बहुत ही बिछड़ते जाते हैं। कोई एक लॉन्ग बचपन का कोई ऐसा नहीं मिलेगा कोई बचपन से आज तक इनका कोई दोस्त है, मोस्टली इन जनरल केसेस। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ऐसा होता है, सेल्फ इमेज, खुद को इतना गिल्ट करना, हद से ज्यादा गिल्ट करना, मैं तो कुछ काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल बोलना ही नहीं पसंद करते काफी तौर, क्योंकि मैं कुछ ही बोलूंगा लोग मेरे बारे में गलत सोच लेंगे। तो ये हद से ज्यादा हो जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये 4 पैमाने होते हैं। तो माइल्ड तो सबको होता है, हम सभी थोड़े बहुत पागल होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है। वो पेंडुलम होता है हमारा, पेंडुलम जाती है सुई और फिर वो वापस आ जाती है। तो ये हमारा चलता रहता है, पेंडुलम जाके जो घड़ी होती है वापस आ जाती है, इट्स ओके। बट ये पेंडुलम जाके उनका पेंडुलम चला ही जाता है, तो आता ही नहीं है। तो ये इनका समस्या होता है। ये समहाउ कोप नहीं कर पाते और ये सीवियर या प्रोफाउंड लेवल पे होते हैं। तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक ही नहीं होता, माता पिता से, भाई बहन से, कजन से, गर्लफ्रेंड से, वाइफ से, अपने हस्बैंड से या पत्नी हो तो अपने टीचर से बहुत ही बहस करेंगे, बहुत ही ज्यादा क्रिटिक करेंगे। सेल्फ इमेज हद से ज्यादा, और सेल्फ इमेज खुद की रहती नहीं है, खुद बहुत ज्यादा या तो ग्रैंडियस फीलिंग करा लेंगे या खुद या तो बहुत ज्यादा खुद को बहुत ही गिल्ट या बहुत ही इंफीरियर फील करेंगे। ठीक है, और अफेक्ट्स, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बोलना है, लोगों का मतलब बातचीत को लेकर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट खेलेंगे ये मोस्टली। इम्पल्सिविटी, छोटी सी बात पर कब ये बिल्कुल कतरा जाए, बिल्कुल गुस्सा आग बबूला हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इनका पर्सनालिटी, इनका इमोशनल इंस्टेबिलिटी ऐसे रहता है, कब ऊपर हो जाए कब नीचे हो जाए, वी डोंट नो। सो दिस इज हाउ दे बिहेव, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ना ये अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। अचानक कोई मरा हुआ कोई व्यक्ति है, अचानक आप बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को आप देखोगे, सो समवन इज ऑन द, मतलब वहाँ पे मृत्यु हुआ है लोगों का, एंड यू विल सी कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति वहाँ पे चिल्ला के हंसने लगा। एंड समवेयर यू विल सी दैट रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपके दोस्त हो कोई, आप बहुत ही फनी बातें कर रहे हैं, एंड पीपल वर लाफिंग, एंड सडनली पीपल स्टार्ट क्राइंग
very hard. तो ये हमें देखने को मिलता है borderline personality disorder के साथ. So there here's a new people who is he. Suryanshi, how are you? You can introduce yourself before starting the class. For a few seconds, you can give your introduction for the interaction. हम अभी Hello everyone, myself Suryanshi. I am currently in my graduation last semester. I just given my exams. Yeah. so you are in bachelor's or master's? Uh, in bachelor's, I'm enrolling for masters this year. From where you are pursuing psychology? Which city? Which state? I had given CUET PG exam, so it depends on the cutoffs No, of no, the I'm talking about universities. where are you studying currently? I'm talking about Okay, Kurukshetra University. Kurukshetra, Haryana. Okay. You're gonna be a clinical psychologist or a counselor, right? Yeah. Okay. Glad to hear that. So yeah, we all are here from the same background. Mostly people are here from the same background. So yeah, we are studying now. We're gonna study about narcissistic personality disorder. Who gonna read? Arti, you can start with that. A narcissistic personality disorder, if you are able to, please. Arti, am I audible? Hello. Yes, please. Yes, please continue. Hi. So, narcissistic personality disorder is the essential feature of narcissistic personality disorder is pervasive pattern of grandiosity, need of admiration, and lack of empathy that begins by early adulthood and is present in a variety of contexts. Your mic is off actually. I'm really sorry. So यहाँ पे जो भी लोग अभी नए जुड़े हो, आप लोग जा सकते हो ग्रुप में and you can start reading from that. हाँ, go through with that PDF and you will find that. हाँ, मैं PDF की बात कर रहा हूँ. So narcissistic personality disorder के बारे में बात करते हैं. इनका essential feature क्या होता है? इनका essential feature ये होता है कि इनको बहुत ज्यादा ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग होती है. ग्रैंडियोसिटी का मतलब कोई मेरे को बताएगा प्लीज? आरती, शिखा, कौशल, अभिषेक, श्रेष्ठा, जो भी आप समझते हो, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं अभी. खैर, Yeah, May. yeah, you can, yeah, please. Yeah, it's like grandiosity is like inflated sense of self-importance. They'll be always like Can you boasting. please put your mic closer so that you get your voice a little bit low? Yeah, 1 second. Is it audible? Yeah, it's okay. It's better than before. Yeah. So grandiosity is like inflated sense of self-importance. They will be always talking about their self talents, their what their Achievements. characters, etc. Whatever they'll be very boastful. They're boastful, yeah. Got it. And they'll also be having like preoccupied fantasies, unlimited success. Like they won't be that their success or their goal won't be in an entire limited level. They'll be expecting the extremes. So that is one of the characters of narcissistic personality. And the main characters is like they'll be attention-seeking person. They'll be so dramatic. Behavior will be exhibited by them, and like constant praises and unable to face. They won't be able to face the criticism. If they present something, they will be like won't be able to face whatever Shikha, the please, negative. yeah. Shikha, please, off the mic. Yeah, please continue. Yeah, so they won't Yeah. be able to face the criticism. Like if somebody says about their negative side or negative part of their presentation or exhibition, they won't be able to handle the criticism, negative criticisms. And their lack of empathy is like the main thing. They'll be like they won't be able to understand others feeling from the other person's point of view. With exploitative behavior also will be seen, and it's like shaky self-esteem will be seen in those people. Underlying sense of inferiority, easily depressed by minor events. Like they won't be able to handle like negative comments or anything. They won't be able to handle things. They need Uh, everything in a very positive way.
Yeah, That thank okay? you very much. Thank you very much for sharing the information. Yeah, yeah, you're right, totally right. Like they are totally attention seeker and 200% attention seeker, we can say. And they are boastful. They rant up their great success, their achievement, and they don't want to be normal. They want to be a center of attention. Yes, इनका ऐसा होता है. और तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें तो हमने ग्रैंडियोसिटी के बारे में इतना कुछ जान लिया कि अपने आप को बहुत ही महान बताना, महत्वाकांक्षा को बहुत बताना, महत्वाकांक्षाएं गिनाना, अपने ग्रेट सक्सेस को गिनवाना, अपने आप को सर्वशक्तिमान बताना, तो ये सारी चीजें इनमें होती हैं। न चाहते हुए बहुत ज्यादा ये रह नहीं पाते अपने कामयाबियों को, अपने अपने खुद के अचीवमेंट्स को बहुत ही ज्यादा। अब दूसरे को मतलब ये नहीं कि उनको बोलने का मौका दे, अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन रखना चाहते हैं ग्रैंडियस पीपल। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एसेंशियल फीचर होता है। जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जिनके अंदर होता है उनका ये बहुत एसेंशियल फीचर होता है कि वो ग्रैंडियोस होते हैं, बोस्टफुल होते हैं, और ये इनको हमेशा हमेशा इनको एडमायरेशन चाहिए। समवन दे बाय क्लोथ, इन्होंने कार खरीदा, इन्होंने कुछ अच्छा करा तो इनको एडमायरेशन चाहिए, इनको मतलब तारीफ चाहिए। आपने कुछ भी इनको हल्का सा कुछ बुरा कर दिया ना, ये बहुत ये क्रिटिक झेल ही नहीं सकते। दे कांट बियर योर क्रिटिसिज्म। हाँ, इनमें ऐसे भी चीजें होती है, और इनके अंदर ना इम्पैथी की बहुत कमी होती है। दे लैक इम्पैथी, जो कि एडल्टहुड से, और इनका जो भी सिम्टम शुरू होता है ना एडल्टहुड के आसपास ऐसा शुरू होता है, मोस्टली 17-18 के आसपास। चीजें तो बचपन से होती है, बट जो मोस्टली जो या यू कैन से ये काफी प्रोफाउंड है, काफी सीवियर केस है, तो आप वो बोल सकते हो वो एडल्ट से चीजें आने शुरू होती है। और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप इनका अलग अलग तरीके से बिहेवियर देख सकते हो, जो कि अलाइन होता है इनके ग्रैंडियोस और सेंस ऑफ एडमिरेशन वाली चीजों से। इनके अंदर एम्पैथी, और ये एक और चीज, ये एक्सप्लॉइट करते हैं अपने चीजों को, मतलब पाने के लिए, अपने सेल्फिश नीड्स के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, सॉरी नॉट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले। एंड अब इनके अंदर एम्पैथी भी नहीं होता, अपैथी होता है। तो आज हमने ये अभी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ लिया है। अभी हम थोड़ा फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ते हैं। जितना हमारे पास समय बचा है हम फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ते हैं। Who gonna read? Shrestha, you can continue with the feeding introduction. Yes, you can start with the introduction of feeding and eating disorder. Please पढ़िए ये वाला। हम पेस सही चल रहे हैं ना? You can, if you are okay, हम पेस को स्लो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग जो हैं वो पहले से पढ़े हुए हैं, तो मैं अपना पेस बढ़ा के चल रहा हूँ। Okay, where is it? I cannot see it. It is on 490. Abhishek, here it is. Yeah. Wait a minute. Yeah, here it is. Yeah. Introduction. Okay. Feeding and Feeding and eating disorders. Feeding and eating disorders are characterized by a persistent disturbance of eating related. or eating related behavior that results in the altered consumption or absorption of food, and that significantly impairs physical health or psychosocial functioning. Feeding and eating disorders include pica, rumination disorder, avoidant or restrictive food intake disorder, anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorder. ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर जो होते हैं, इनमें हमेशा बहुत ज़्यादा लगातार डिस्टरबेंस होता है खाने पीने में, और ये इतना ज़्यादा समस्या होता है ना खाने पीने का, इससे इनको साइकोलॉजिकल साइकोसोशल फंक्शनिंग में, फिजिकल हेल्थ में दिक्कतें आने लगती हैं। शरीर बिल्कुल दुबला पतला सा हो जाता है, और ये समाज में कहीं भी मतलब पार्टी में गए, शादी में गए, या कहीं समारोह में गए, फंक्शन में गए, और वहाँ पे इनको ना अडेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी इनकी समस्याएं हो जाती हैं जिनको फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर होता है। अभी इसमें कुछ फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर के नाम है: एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ये तीन हम मुख्यतः पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या है ये फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है? ये कैसे होता है? बहुत ही ज्यादा कंजप्शन से, बहुत ही ज्यादा फूड के एब्जॉर्प्शन से होता है। पता नहीं अंदर एक
कंपैरिजन से आ सकता है, अगर बहुत ज्यादा हम घर में देखें किसी व्यक्ति को कंपेयर किया जा रहा है दूसरे बच्चों से. Parents used to compare a lot from the different other kids. You are too thin, you are too lean, and look to the other kids, they are healthy, you are not well enough, you are not good enough. So that's why they compare. इससे भी होता है, और पता नहीं लाइक उनका जेनेटिक्स ही ऐसा होता है. दे आर नॉट मेड फॉर दैट. अगर वो फैट है या लीन है, उनका जेनेटिक्स ही ऐसा है. बट पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट एक्सेप्ट देम. तो इससे चीजें बनती जाती हैं, उससे चीजें आ जाती हैं, और काफी जेनेटिक्स वाली चीजें भी होती हैं. तो पीजीटी, एनेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा आ जाता है चीजें ऐसी. यूं बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं. और ऐसा भी होता है वो खाना खाते ही नहीं है. दे डोंट ईट. उनको ऐसा फियर रहता है, बहुत ज्यादा एक एक्सेसिव फियर होता है कि मैं बहुत ही मोटा हो जाऊंगा, मैं थुलथुल हो जाऊंगा, मेरा फैट बिल्कुल आ जाएगा, मैं बिल्कुल ही वियर्ड सा दिखूंगा, मैं बिल्कुल स्मार्ट नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल हैंडसम नहीं रहूंगा, और लोग मुझे बुली करेंगे, टीज करेंगे, और आई विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, एडप्टेबल इन द सोसाइटी. उनको एक्सेसिव ही चीजें होने लगती हैं, तो उससे चीजें डेवलप होती हैं. तो फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर में क्या, जैसे पीका आ जाता है, न्यूरो चबाना वाला, हमेशा चबाते रहेंगे चीजों को. ये भी पीका पीका हमने पढ़ा था. वेट ए मिनट, हम इसको बताते हैं अभी. पीका यू कैन सर्च. पीका होता है, रुमिनेशन डिसऑर्डर होता है, अवॉइडेंट और रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक. इंटरमिटेंट डाइटिंग के नाम पर वो बिल्कुल खाना ही नहीं खाएंगे 16 17 18 घंटे. इंटरमिटेंट डाइटिंग इज गुड, बट बिल्कुल दिन भर खाना ही ना खाना, और बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाना, बिल्कुल स्पाइनिश ही खाना. कभी काफी लोग तो वो बॉलीवुड एक्टर से प्रभावित होते हैं. ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, उनको ही बिल्कुल कॉपी करने लगते हैं. ऐसे केसेस में देखने को आता है. वो ऐसे सोशल फिगर, सोशल प्रूफ को मान के चीजों को अपने को रेशनलाइज करते हैं. या तो ये चीजें होती हैं. किसी के साथ कोई ऐसा घटना या वाकया हुआ है क्या? यू कैन शेयर विद अस. श्रेष्ठा, आरती, कौशल, अभिषेक. I saw a movie on that disorder called Pika. ओह, Yeah, अमेज़न प्राइम पे था क्या? मैंने अभी भी एक देखा था शायद. yeah, I think it's called Swallow. I saw it a long time ago. ओके, क्या था उसमें? उसमें एक लड़की को लाइक अजीब अजीब चीजें खाने की वो हो गई थी. शी क्रेव्ड डर्ट. वो नेल्स खाती थी, नेल्स, स्टील नेल्स, और भी जो चीजें खाई नहीं जा सकती वैसी चीजें खाती थी. दैट इज व्हाट पीका इज. हाँ, ऑस्ट्रिच जैसे हो जाते हैं पीका वाले लोग. उसमें मिट्टी, बालू, चाक, कागज, साबुन, ये सारी चीजें खाने Yeah, लगते हैं. anything that is not meant to be eaten, they crave that. कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, ये दिए जो होते हैं दिवाली वाले, वो खाने लगते हैं. ये आपने देखा हो तो हाँ, पीका में बहुत ही वियर्ड सा ये मतलब डिसऑर्डर है. तो वो भी आप यू कैन सेंड विथ अस. हाँ, ग्रुप में आप चीजें शेयर कर सकती हो श्रेष्ठा, ऐसी मूवीज का. हाँ, अगर आपको याद आए तो. थैंक यू. सो इसमें क्या होता है, पीका रुमिनेशन डिसऑर्डर, अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर होता है. अब इस थोड़ा सा बात करते हैं. पीका का हमने थोड़ा सा देख लिया कि लोग बहुत बालू, मिट्टी, कागज, साबुन ये सब खाने लगते हैं, लकड़ी खाने लगते हैं, जैसा अभी स्टील भी कुछ केसेस में खाने लगते हैं. बहुत ही रेयर होता है ये. तो अभी हम पढ़ते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में. एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? इसमें 3 एसेंशियल फीचर होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा. परसिस्टेंट एनर्जी इंटेक रिस्ट्रिक्शन. अब इसमें क्या होता है, इनको लगता है कि एनर्जी ये लेना ही नहीं चाहते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें. और दूसरा क्या होता है, ये इनको लगता है कि मैं ज्यादा बहुत मोटा हो जाऊंगा, बहुत मैं फैटी हो जाऊंगा, मैं ओबेसिटी का शिकार हो जाऊंगा. दूसरी, और इसमें क्या होता है, एक परसिस्टेंट बिहेवियर आता है, जो कि इनको हमेशा लगता है कि वेट गेन की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं, वो हमेशा मोटे हो जा रहे हैं, अपने आप को हमेशा शीशे में देखते रहेंगे. जिसके साथ आता है कि अपने शेप को लेकर, अपने वेट को लेकर ये बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं. they concerned about their weight, their shape, their mass, their physique, their muscle mass. ये सारी चीजों को लेकर ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कंसर्न होते हैं. और ये
एनर्जी इंटेक जैसे कार्ब्स आलू वगैरह, ये सारी चीजें वो अगर इनको पता होती है वो कर लेना अवॉइड करते हैं। तो एनर्जी इंटेक को ये लेना कम कर देते हैं, अपने बॉडी मास वगैरह चीजों को के बारे में बहुत ही कंसर्न होते हैं। तो ओवरऑल यही होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में कि मैं मोटा ना हो जाऊं, ओबीज ना हो जाऊं, मेरा एनर्जी इंटेक बढ़ रहा है, मेरा कार्ब्स बढ़ रहा है, मेरा फैट परसेंटेज बढ़ रहा है, ओवरली हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, लगेंगे मतलब एक्सट्रीम का इंटरमीडिएट डाइटिंग करने। एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये होता है। और अब हम पढ़ते हैं बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। आरती यू कैन स्टार्ट बुलिमिया नर्वोसा। अगर आपने भी एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में कुछ और पढ़ा है तो यू कैन शेयर विद अस। यस, कंटिन्यू आरती, बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। So, according to DSM-5 here, hello. Yep, you are audible. Please continue. Yeah, okay. So according to DSM-5 here, there are 3 essential features of bulimia nervosa: recurrent episodes of binge eating, recurrent inappropriate compensatory behaviors to prevent weight gain, and self-evaluation that is unknowingly influenced by body shape and weight. ओके, तो बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है ना, ये DSM-5 TR की, थैंक यू वेरी मच आरती फॉर द रीडिंग, पृष्ठा आपको भी। इसमें 3 एसेंशियल फीचर होते हैं कि बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करते हैं ये। बिंज ईटिंग, एक ही साथ बहुत ज्यादा खा लेना। इनको लगता है कि मेरे शरीर में कुछ कमी रह जाएगी, मैं कमजोर रह जाऊंगी, तो ये बहुत ही ज्यादा खाते हैं। और फिर जब बहुत ज्यादा खाते हैं उसके बाद क्या होता है, वजन बढ़ने से डरने लगते हैं, अरे मेरा वजन ना बढ़ जाए। तो फिर ये अचानक से कई लोग ना अपना मतलब उंगली डाल डाल के काफी लोग ना उल्टी भी करने लगते हैं। तो ऐसी चीज इसमें मतलब आती है और अजीब सी चीजें होती हैं। तो पहले तो ये खूब खा लेंगे, खूब खा लेंगे, खूब खा लेंगे, फिर डरेंगे कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, तो फिर ये उल्टियां भी करने लगते हैं। ऐसा एक मेसोपोटामिया का मैं पढ़ रहा था, ऐसा कोई राजा था, उसने कुछ रखा हुआ था लोगों को, वो खा खा के चीजें बहुत खा लेता था, फिर वो लोगों से रखा था उसने उल्टियां करवाने के लिए, वॉमिटिंग करवाने के लिए, नोजिया करवाने के लिए, वो चीजों लोगों को रखा था, हायर करा था। तो ऐसे ऐसे चीजें हिस्ट्री में भी हुई हैं। तो दिस इज बुलिमिया नर्वोसा। बिंज ईटिंग होगा, फिर वो उसमें बहुत ज्यादा बर्गिंग होगा, वोमिटिंग होगा, बॉडी इमेज ऑब्सेशन, लगेगा कि इनको मैं ओवरवेट हो रहा हूँ, लगेगा कि बहुत, फिर बिंज ईटिंग इतना खा लेंगे, बहुत ज्यादा खा लेंगे तो बहुत ज्यादा गिल्ट होगा इनको कि अरे मैंने इतना खा लिया, मैंने इतना खा लिया, है ना। ये सारी चीज इनको लगातार साइकिल में चलता रहेगा इनका। बिंज ईटिंग, बर्गिंग मतलब वोमिटिंग वगैरह, फिर बॉडी इमेज ऑब्सेशन, अरे मैं मोटा रहा हूँ, मैं ओबीस हो रहा हूँ, दिस ऑल थिंग, और फिर उसके बाद गिल्ट से, फिर उसके बाद वो बिंज ईटिंग करने लगेंगे, ऐसी चीज, फिर खाना छोड़ेंगे। तो ऐसा इनका साइकिल चलते रहता है बुलिमिया नर्वोसा में। गॉट इट। ये चीजें ऐसे ही है बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बट चीजें हल्की हल्की सी स्लाइटली न्यूएंसेस में डिफरेंसेस हैं, इनके सूक्ष्मताओं में डिफरेंस है, तो उस पे आप ध्यान देना। जैसे आप वोमिटिंग वगैरह है, गिल्ट वगैरह भी है, बट एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमें ये देखने को नहीं मिला। सो लेट्स स्टडी अबाउट बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। श्रेष्ठा कंटिन्यू कर सकते हैं आप बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। या पेज थोड़ा सा आगे प्लीज। या अभिषेक प्लीज थोड़ा सा स्लाइड हो। या थैंक यू वेरी ओके, मच। बुलिमिया राइट। Yeah, the essential feature of binge eating disorder is recurrent. Yeah. The essential feature of binge eating disorder is recurrent episodes of binge eating that must occur on average at least once per week for 3 months. Criterion D. An episode of binge eating is defined as eating in a discrete period of time an amount of food that is larger than most people would eat in a similar period of time under similar circumstances. तो ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में देखते हैं हम किसे बोलेंगे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो इनका एसेंशियल फीचर यही होता है कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक ही साथ खाते हैं, और कम से कम ना एक हफ्ते में एक बार जरूर ऐसा होगा, और ये लगातार कम से कम 3 महीने तक चलेगा। क्राइटेरिया डी में आते हैं ये। इनका भी अलग अलग मतलब क्राइटेरिया बनाया गया है, हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, डीएसएम और आईसीडी के हम नहीं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इतना
कैटेगराइजेशन नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो इनको बिंज ईटिंग में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खाना, हमने बिंज का मतलब अधिक खाना। हफ्ते में एक बार बिंज ईटिंग वाले सिम्टम्स होंगे ही होंगे इनको, और ये लगातार हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार, तो महीने में 4 बार, तो 4 4 8 4 12 बार, तो 12 बार कम से कम आपको देखने को मिलेगा 3 महीने में। तो हम बोलेंगे हाँ इनको थोड़ा बिंज ईटिंग का डिसऑर्डर है, प्लीज ट्रीट देम। हमें तब अगर लगातार 3 महीने तक हर हफ्ते में ये बिंज ईटिंग का सिम्टम्स देखने को मिला, तो हम प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। अब हम थोड़ा साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में बात करेंगे। साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में कौशल आप पढ़ सकते हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, काफी लोगों ने सुना होगा ऐसे। अभिषेक, हमने क्लासेस लिया था तो हम हल्का ओवरऑल बस हम स्लाइटली टच करने वाले हैं इसे। कौशल प्लीज आप कंटिन्यू करिए इसे, साइकोडायनेमिक थेरेपी इंट्रोडक्शन से। The aim of psychodynamic therapy is not to cure patients' psychological problems in the way that the medical profession might hope to find cure for cancer. Rather, the aim is enable the person to cope better with inner emotional conflicts that are causing disturbance. ओके, तो साइकोडायनेमिक थेरेपी का हमें पता है किसने दिया था ये। आरती, आपको, आपने तो पढ़ा होगा शायद, आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया राइट, सिगमंड फ्राइड। तो इनका क्या कहना था, या प्लीज आरती आप कंटिन्यू करिए। थोड़ा साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा था तो आप भी शेयर कर सकती हैं। Psychodynamic dynamic is like basically they treat on the inner conflicts, that is child trauma, etc. And Yep. it's like they go with the unconscious part, not in the conscious part. And it's like it's based on past, not through the future lives or etc. They concentrate on the past lives and their trauma conflicts they are having, and most of the thing they are oriented with the child conflicts etc. And the Sigmund Freud have been explaining the psychosexual stages of and they'll be having, if they are fixated in each stages, the four stages are there, oral and phallic and latency and genital. And it's like in that each stages, if the child get fixated, then that will be leading to a personality problem or conflict in future of their lives. That's what psychodynamic theory in briefly it's saying. Yeah. थैंक यू वेरी मच। या साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का इसमें चीज़ें हैं, काफ़ी मैटर करती हैं, और अनकॉन्शियस एक्सपेक्ट्स पे तो जाते हैं। हमारा ये सेंटर होता है, स्टडी सेंटर, बिल्कुल अब बोले अगर साइकोडायनेमिक थेरेपी का, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस ही है, अनकॉन्शियस माइंड ही है, जो अनकॉन्शियसनेस में उसको कॉन्शियसनेस में लेकर आओ, कॉन्शियस एस्पेक्ट्स में लेकर आओ, और देखो चीज़ों को, जो रिप्रेशन रिक्रेशन सप्रेशन हुआ है उसको। या यू आर राइट। और श्रेष्ठ, आरती, I want to ask something about you. आपने binge eating, bulimia nervosa और anorexia nervosa के बारे में you wanna share something? Binge bulimia and anorexia nervosa के बारे में you can also share with us. It's like basically people of teenagers are basically facing all these three disorders. Like they are more concentrated on the Adolescents, social. right? Adolescents, right? Adolescents, yeah. They are more of concentrated to the social life, where they have to fit into the particular framework. So they try to act accordingly. They either eat so much, though they crave for things, they eat so much and they throw out everything to back into that shape of upper class, etc. So it's like basically the adolescent problems are basically with this bulimia and anorexia nervosa and binge eating. They fall for all these three, the eating habits. Yeah, like they have their health risk also, like they can be like diabetic and BP problem they could have, or and they could have low self-esteem also, depression and anxiety, and social isolation they can have also with that, and heart problems as well. Yeah.
So thank you very much. Only adolescents we will see इनके साथ ये ज़्यादा समस्याएं होती हैं. अब साइकोडायनेमिक थेरेपी की बात करें तो इसमें मेन एम होता है ना साइकोडायनेमिक थेरेपी का, पेशेंट्स को क्योर नहीं करना होता है. इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्योर नहीं होता है. इसमें मेडिकल प्रोग्रेशन प्रोफेशन जो होप होता है, जैसे कि एक होप होता है कैंसर का कि क्योर कर सकता है, होप की तरह काम करता है, वैसे सेम ये भी. अब इसका एम क्या होता है, पर्सन को अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो अंदर चल रहा है, इड ईगो सुपर ईगो का, उससे कोप अप कराने में होता है. जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ना, इड ईगो सुपर ईगो, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट, उससे कोप अप कराना होता है, ना कि क्योर करना होता है. एक बार हम ईगो को बेहतर बना दें, ईगो नॉट इन द स्पिरिचुअल सेंस, नॉट इन द हमारा जो जनरल सोशल टर्म्स वाला साइकोलॉजी वाला ईगो, इड ईगो सुपर वाला, साइको डायनेमिक थ्योरी वाला ईगो बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी थ्योरीज की. तो ईगो को बेहतर करना होता है सो दैट वो इड को और सुपर ईगो को संभाल पाए. ठीक है, तो ये एम होता है साइकोडायनेमिक थेरेपी का. क्योर कर देना, दवा ले लो, खा लो, ठीक हो जाओ, नो, ऐसा नहीं होता. उसमें एक बेटर कोपिंग मैकेनिज्म पे काम किया जाता है कि आप खुद अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर आप देख पाओ, कॉन्शियसली अवेयर हो पाओ, सो दैट इसके क्लासेस को आप समझो और अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी. आप जब आप देख पाओगे ना चीजों को, क्लासेस को समझ पाओगे ना, एक क्लियर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आएगी ना, तो चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है, रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है. क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि क्योर किया, तो वो फिर जाएंगे थेरेपिस्ट के पास, देखो मेरे को फिर समस्याएं आई, तो फिर मेरा लो ये दवाई दे दो मेरे को ठीक करो. तो ऐसे नहीं चीजें चलती. इसमें ना अगर आपको लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक करनी है, परमानेंट चीजें ठीक करनी है, तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी. तो आगे जब जब भी ऐसा होगा तो आप उस चीजों को अपने आप ठीक कर लोगे. तो यार ये सारी चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम चीजों को साफ साफ देख नहीं पाते. थेरेपिस्ट हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं चीजों को साफ साफ देखने में. हम आम शब्दों में बात करें तो अब इसका थेरेपी क्या होता है, अब कैसे होगा ये. अनकॉन्शियस माइंड को आप कवर अप करो, जितना कॉन्फ्लिक्ट है, जितना सप्रेशन है, जितना सेक्सुअल अब्यूज है, जितना जो भी नेगेटिव थिंग्स है बचपन से आई गई हैं, उन सब चीजों को देखो, अपने खंगालो अनकॉन्शियस माइंड के जो नीचे का जो आइसबर्ग है पूरा, उसमें जाके देखो वो है क्या, कहाँ से समस्या आ रहा है. अब इसमें क्या क्या करते हैं, अनकॉन्शियस को कैसे कैसे देखा जा सकता है, फ्री एसोसिएशन से, ड्रीम एनालिसिस से, वर्ड्स एसोसिएशन से, ये सारे चीजों से देखा जा सकता है, किया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम से. तो ये सब इसमें हम करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी में. चलिए देखते हैं फ्री एसोसिएशन में क्या होता है. फ्री एसोसिएशन में सृष्टा आप रीड करेंगी. फ्री एसोसिएशन, या प्लीज थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए. या अभिषेक. द क्लाइंट आस्क्ड रिक्लाइन. मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा हो रहा है, तो हम इसको हल्का सा बाद में कंटिन्यू श्रेष्ठ, हम आपके पढ़ाने के बाद ही करेंगे टेक्निक्स राइट ना. हाँ, टेक्निक्स में फ्री एसोसिएशन. या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल प्लीज, थोड़ा सा और. Yeah, techniques. First is free association. The client is asked to recline on a chair or couch with the therapist out of sight and allow the free flow of feelings, thoughts, or images. As these come to mind, client express them in words without censorship. The analyst must listen, suspending their own values and judgments, and interrupting from time to time to ask the client to reflect upon the significance of associations. The reasoning is that association should arise from and therefore reflect internal dynamic conflict. थैंक यू वेरी मच श्रेष्ठा. हम ना अभी आज फ्री एसोसिएशन तक ही रहते हैं, रखने देते हैं बातों को, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, अपना व्यू शेयर करना आप लोग, फिर उसके बाद हम क्लासेस कल से कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो अभी हम फ्री एसोसिएशन पढ़ लेते हैं. अब देखिए फ्री एसोसिएशन में क्या होता है. फ्री एसोसिएशन में व्यक्ति को बिल्कुल काउच पे या चेयर पे बैठा दिया जाता है, या जो ट्रेडिशनल पारंपरिक चीजें हुआ करती थी उसमें एक अंधेरे रूम में लेटा के थेरेपिस्ट उनके पीछे चला जाता था. एक डार्क अंधेरा बिल्कुल शांत वातावरण होता था, उसमें व्यक्ति लेटता था
और उसमें क्या होता था ना, थेरेपिस्ट बोलते थे कि जो भी आपके मन में, ख्याल में, जहन में आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, आंख बंद करो। आंख बंद कराते थे, हिप्नोसिस करते थे पहले। सिगमंड फ्रायड ब्रायर उनके गुरु थे, उनके जो सीखने वाले व्यक्ति थे, जो जब वो फ्रांस गए थे, पेरिस गए थे, तो वहां से उन्होंने सीखा था। तो बोलते थे कि जो भी आपके मन में आ रहा है, इमेजेस आ रहा है, आप बोलो, एक्सप्रेस करो, बिल्कुल रोक टोक ना करो आप। और उसमें अब एज अ थेरेपिस्ट आपको जजमेंटल नहीं होना है। यू डोंट हैव टू लाइक प्रॉब्लम सॉल्वर तुरंत का तुरंत, नो। यू हैव टू बी लाइक एक्टिव लिसनर, और यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल। आपका ये रोल होने वाला है उसमें, ठीक है। ये सारी चीजें होती थी उसमें। और जो भी अब क्या होता था फ्री एसोसिएशन में, जहां भी अब ऐसे व्यक्ति अब स्टार्ट करता था बोलना, बोलते जाता था, बोलते जाता था, दे केप्ट ऑन स्पीकिंग, दे कीप ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन स्पीकिंग। सडनली दे गॉट स्टक, या दे मैनिपुलेट, चीजों को मैनिपुलेट करे या कवर अप करने के लिए कुछ चीजें बोले। तो वहीं से थेरेपिस्ट का ये कमाल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, चीजों को पकड़ ले। जब वो स्टक करे, जब वो अटके, स्टटर करे, है ना, ट्रिम्बलिंग करने लगे उसके हाथ वगैरह, पैल्पिटेशन होने लगे, राइट। सो और वॉइस को थोड़ा मॉड्यूलेशन करने लगे, या उसको रैशनलाइजेशन करने लगे, तो वहीं पे समस्या आती थी। वही इसको थॉट परेशान कर रहे हैं, सेक्सुअल इमेजेस हो सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर हो सकता है, या ऐसा कुछ जो समाज में बोलना एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पास्ट का चीजें हो सकती हैं, बचपन की जो फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, बहुत सारी चीज में आती है। अभी हम पूरा नहीं पे पढ़ने वाले हैं। तो कल हम पढ़ेंगे वर्ड एसोसिएशन, एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, ट्रांसफरेंस भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक इसमें एक स्टेप आता है साइकोडायनेमिक में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहेवियर थेरेपी, टेक्निक्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, टोकन इकोनॉमी, एवर्जन थेरेपी, फ्लडिंग। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का थोड़ा सा बात पढ़ेंगे, फिर ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। देखते हैं कहाँ तक होता है, वी विल कंटिन्यू। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। तो अभी टॉपिक हम क्लोज करते हैं, और लेट्स टॉक अबाउट द क्लास। Yes, Reshta, Aarti, you wanna share something about the class? आज आपने क्या सीखा और क्या चीजें सीखने को मिली? हमने फिर से वाइंड अप कर देते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था आज। हमने पढ़ा था, वेट ए मिनट, हमने आज क्या क्या पढ़ा था वो पढ़ लेते हैं थोड़ा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ा था। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फीडिंग डिसऑर्डर पढ़ा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। साइकोडायनामिक थेरेपी में फ्री एसोसिएशन हमने पढ़ा इतना। तो क्या सबके बारे में हमने बात करा था। ये क्लस्टर ए वाले ऑड एंड एसेंट्रिक होते हैं, क्लस्टर बी वाले ड्रामेटिक, इमोशनल और एरेटिक होते हैं, क्लस्टर सी वाले एंग्जियस और फेयरफुल होते हैं। और आप गो थ्रू कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, सो दैट एक ब्लूप्रिंट बन जाए चीज़ों का, जो हमने आज पढ़ा। श्रेष्ठा, आप कंटिन्यू कर सकती हैं अबाउट द क्लास और फीडबैक, एनीथिंग यू वांट टू शेयर। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उससे कुछ आपने रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल देखा था, पैरानॉइड का, एंटी सोशल का, बॉर्डरलाइन का, नार्सिसिस्टिक का, फीडिंग ईटिंग डिसऑर्डर का, साइकोडायनामिक थेरेपी का, और क्लस्टर एबीसी का, कुछ भी आप शेयर भी कर सकती हो। Yeah, it was very interesting. And we got to know about so many disorders, and it was really good. थैंक यू वेरी मच। एनी सजेशन यू वांट टू गिव टू अस, लाइक गिव कोई टॉपिक ऐड कराना, कुछ पढ़ाना, ऐसा कुछ? I'll I'll tell you afterwards, because मेरे पास है अभी कुछ कुछ चीजें मैं DSM में पढ़ी हूँ जो इनके ना थोड़ा अलाइन होती हैं, तो मैं वो बताऊंगी बाद में। ओके सुरेश, थैंक यू वेरी मच। कौशल, व्हाट अबाउट यू? कैसा लगा क्लास, और एंड व्हाट यू लर्न टुडे? और कुछ बताना है तो आप बता सकते हो। क्लास अच्छा था, आज का क्लास अच्छा था। मेरे को फूड डिसऑर्डर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, जो कि आज पता चला है मेरे को। आप माइक क्लोज कर सकते हो कौशल, थोड़ा सा प्लीज। यस कौशल, आप माइक क्लोज कर लेंगे बेहतर रहेगा। फूड डिसऑर्डर आपको नया जानने को मिला, अच्छा है। ओके, या कंटिन्यू कौशल।
हाँ, बस मैं वही कह रहा था कि मेरे को फूड डिसऑर्डर्स के बारे में पता चला है थोड़ा बहुत, और क्लास अच्छा था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी बाकी ऐड मच। यस, बताइए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, नहीं बस कंटिन्यू करें आप। नहीं बस इतना ही। Okay, thank you, Kausal and Shrestha. What about you, Aarti? Anything you wanna share? Feedback and all, suggestion, कैसा क्या सीखने को मिला आपको, और कुछ अपने बारे में बता सकती हैं, because it's your first time here. Well, the class was precise and crisp. Yeah. Hello. Pass करके please. Hello. Is it Yeah, audible? yeah, it's okay. Yeah. Yeah, the class was precise and crisp. It was up to the point.